Dear students of Standard 10, today we are going to take up quadratic question. I have been asked that videos should not be very lengthy, so I'll try my best to confine to 25 to 30 minutes and then it will go on. So, the very first thing, if you are given what is a linear polynomial, you have done in class 9. What you have done? You have done an expression of the form Px is equal to Ax plus B. Remember, what is there? Px is equal to Ax plus B, where A is not equal to 0 and A, B are real numbers. Just see, A and B are real numbers and A is not equal to 0 is called a linear polynomial. Any example you can take. For example, if you say it is 2x plus 3, if I say Px is equal to 2x plus 3, it's a linear polynomial. Here, what is there? Power of x is 1. Can you remember? Linear. So that was the thing you have done in class 9. But when it comes to quadratic polynomial, we say a polynomial of second degree. Yaad rakhiye. This was the polynomial of what? 1 degree. This is a polynomial of second degree, that is Px is equal to, what is that? Ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. So you want to ensure that in any quadratic polynomial or any polynomial of degree 2 has to be there, because in case a becomes 0, then the whole thing goes hayway. In this case, if I say, a is equal to 0, then it's not a linear polynomial. So that is why that condition has been given. And ABC, as I've told you, ABC are real numbers. So these two things are very clear. What is that? In this case, if you want to have, you can say x square minus 3x plus 2, and you can say Px is equal to x square minus 3x plus 2. This is a what? This is a quadratic polynomial, because see, this polynomial has degree 2, second degree. Is it clear? Similarly, you can have cubic equation also. That is not in our syllabus. Now, if the question asks, then what is quadratic equation? Remember, that was polynomial. You make it equal to 0. The polynomial you have, when it is equated to 0, it becomes a quadratic equation. Means a quadratic polynomial when equated to 0 becomes 0. But that cannot be the definition. If you are asked what is quadratic equation, then you can say a polynomial of second degree, that is Px is equal to Ax square plus Bx plus c, where A, B, C are real numbers, A is not equal to 0, and Px is equal to 0 means, what is that? You can say Ax square plus Bx plus c is equal to 0 is called the quadratic equation, where ABC are, we have already told, ABC are real numbers and A is not equal to 0. I'll tell you one more thing. There is, though it's not in our syllabus, but you should always know. Do you know what is the standard form of polynomial of degree n? Standard form. I am talking about a polynomial of degree n. It will be always used at different places, though it's not in our syllabus. So let it go in the form of wisdom box. Wherever I write WB, that is wisdom box, you should know. क्या होता है भाई? A0 x to the power n plus A1 x to the power n minus 1 plus A2 x to the power n minus 2 plus dot 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 an x, if you want to write an minus 1 x to the power 1 and plus, what is that? An x to the power 0. But what is the most important thing here? A0 should not be equal to 0. A0, A1, A2, A3, An are what? Real numbers, and whatever value of n is there,
it's always a non-negative, what is that? Non-negative whole number. Sorry, non-negative integer you can say. Means you can say whole number. Means n can be 0, n can be 1, 2, 3, 4, but it cannot be negative. Meaning if you are writing x plus 1 by x, this is not a polynomial. पॉलिनोमियल अगर होना है तो ये सबको एक लाइन में होना पड़ेगा, चाहे एक पावर हो, दो पावर हो, तीन पावर हो. सो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टैंडर्ड फॉर्म, आई एम आस्किंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए quadratic equation. So you will say the equation of the form, the equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are what? रियल नंबर्स. कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वही वाला है. रियल नंबर्स एंड a is not equal to 0 is called, ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, प्रोवाइडेड a, b, c are not equal to 0 and a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. But if you are asked to give one example, what is quadratic equation? Just now I told you, if you have x square minus 3x plus 4 is equal to 0, this becomes what? A quadratic equation. If you are given x square, remember what I have told you. If I say x plus 1 by x is equal to 2 is a quadratic equation. I have told you that separately if you write this one, it is not a quadratic polynomial, but if you write in this form, this is a quadratic equation. Why? थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करते हो. इसको क्या लिखोगे बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0. ये किस फॉर्म में आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में आ गया. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. मतलब ये हुआ कि आप ये देख के तुरंत क्या हाथ पांव छोड़ के भाग मत जाओ कि साहब ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. नहीं, यू प्रोसीड ऑन. मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, याद रखना, तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है. लेकिन अगर इसको इक्वेट, मान लीजिए आपने कर दिया 0 कर दिया, तो 0 कर देंगे तो क्या मिलेगा आपके पास? You will have x square plus 1 is equal to 0. This is a quadratic one. What actually we are going to tell you? Just now I'll tell you. So we had this equation x square plus 1 is equal to 0. अब आप कहोगे कि सर हमारे पास जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसमें b वाला तो है नहीं. सो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं. एनी, ये आपका नोट में जा रहा है, नहीं जानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप जान के रखिए. एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर द लीनियर पार्ट बिकम्स 0, मतलब दिस वन इज नॉट देयर, इज नोन एज इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं, दैट इज इफ यू हैव ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसको ये भी बोलते हैं, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आप समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे होता है ना भाई, चाय है तो लोग बोलते हैं प्योर दूध की चाय है. प्योर दूध माने क्या? उसमें पानी नहीं डाला गया है. तो ये प्योर क्वाड्रेटिक क्यों हो गया? जो लीनियर वाला पार्ट है उसको उठा के बाहर कर दिया. इज इट क्लियर नाउ? अब देखिए, मैं एक चीज और बता रहा था कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनते कैसे हैं, अगर हमसे कोई पूछता है कि साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये आपके एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में यही 2 क्वेश्चन दिया हुआ है. 2 तरह के क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन ये है कि
भाई आप बताइए क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए हम आपको बताएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आएगा। और दूसरा पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता दें, अगर आप कहते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो लेंथ है, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 ज्यादा है। तो हम कहते हैं लेट्स सपोज दैट दिस इज x, सो व्हाट इज ब्रेथ? ब्रेथ इज इक्वल टू हाउ मच? 3। द क्लास इज विद मी। क्या हमने बोला? रेक्टेंगल, वी हैव अ रेक्टेंगल whose length is 3 more than breadth. So if the area is equal to 70 centimeter square, then we have to express the same in the form of a quadratic equation. Is it clear now? What is that? Breadth is x, length is 3 more, x plus 3. What is the area? Area आप क्या लिखते हो? Area is equal to length into breadth. So it is x plus 3 multiplied by x. Is it clear? X plus 3 multiplied, and this is equal to how much? क्या बोला गया है भाई? अगर ऐसा है तो उसका एरिया कितना हो जा रहा है? 70 स्क्वायर। मीनिंग कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 70। यानी आपने कह दिया कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज हाउ वी, मतलब जो हमें कंडीशन दी गई है उस कंडीशन में एक वेरिएबल लेकर के, जैसे आप कहते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस इवन नंबर्स, थिंक टू कंटिन्यूअस इवन नंबर्स इज इक्वल टू 120। मेरे साथ चलिएगा, क्या बोला है? दो कंटिन्यूअस इवन नंबर। तो अगर हम कहते हैं भाई एक हमारा इवन नंबर क्या है? x है, याद रखिए। हालांकि लोग 2n लिखता है, मैं आपको x से काम चला रहा हूं। एक आपके पास कितना है? x है। तो दूसरा इसका जो नंबर होगा, इवन नंबर, क्या होगा? 2 कॉन्सिक्यूटिव, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 120। ये आपको एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमने कह दिया कि लेट सपोज दैट हमारे पास एक नंबर 1 है, दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 2 होगा। दोनों का प्रोडक्ट कितना होना है? तो हम कहते हैं x मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच? x प्लस 2 इज इक्वल टू 120। इसका मतलब हुआ x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 120। यानी व्हाट इज द इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू, याद रखिएगा मैं सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ इक्वेशन फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं जो हमारे यहाँ फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हमारे पास दो ही तरह के क्वेश्चन है। एक तो ये है कि आपको पहचान करनी है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, और दूसरा है कि अगर हमारे पास सिचुएशंस दी हुई हैं तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। मैं एक नई चीज बता दूं आपको इसमें कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे आप कहते हो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, मान लीजिए ये दिया हुआ, और आपसे पूछता है कि हमें ये बताइए कि x इज इक्वल टू, मैं एक अलग से एग्जांपल ले रहा हूं, आपसे पूछता है कि भाई बताइए x इज इक्वल टू -1। याद रखिएगा, इसका सोल्यूशन है क्या? अगर सोल्यूशन होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करना समझते हैं ना, जहां x है उसमें -1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। आप रख के देख लीजिए कितना हो रहा है बेटा? -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 3 कितना हुआ जी? 1 -4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि x इज इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग इसमें ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आई टेक अप द क्वेश्चन फ्रॉम माय बुक। अब तीसरा देखिए, अगर आपसे कहता कि भाई ये एग्जांपल तो 1 हो गया, अब अगर एग्जांपल 2 कहते हैं, ये कहता k है और ये कहता
कि अगर x इज इक्वल टू -3 इसका सोल्यूशन है, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, x इज इक्वल टू -3 इसका सोल्यूशन है, तो k की कितनी वैल्यू होगी? तो हम x इज इक्वल टू -3 रखते हैं, यहां पर लिखते हैं -3 का स्क्वायर 4 इंटू -3 प्लस k इज इक्वल 0, इसका मतलब कि 9 - 12 प्लस k इज इक्वल 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3, हम वैल्यू निकाल लिए. So these are the 4 questions we will be discussing in due course of time today in this video. So we have seen how to form. अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अगर आप कहता है कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो आप क्या लिखोगे? कंसेक्यूटिव, आप मेरे साथ साथ चलिए, x होगा, दूसरा x + 1 होगा. कहता है दो इवन कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो भी आप लिखोगे x और x + 2, क्योंकि इवन नंबर में कितने का दो का जंप मिलता है. अगर कहता है कि दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो भी आप यही लिखोगे, क्या? x + 2 कहता. अगर आपसे ये कहता है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन देखे दिए नहीं है, कि देयर आर टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 या मल्टीपल्स ऑफ 5, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 कहता तो पहला x कहते हैं और दूसरा क्या कह दोगे? 5x कह दो. क्लियर हो गया. अगर आपको क्या दिया है? डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी दी है, तो टाइम कैसे निकालोगे? वही आपको पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी. सो लाइक दैट वी विल सी द क्वेश्चंस एंड विल ट्राई टू फिनिश द फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी. देखिए, now NCERT exercise 4.1, the very first question I am going to take up, it's asked check whether the following equations are quadratic equations or not. ये quadratic equation है क्या? अब देखिए क्वाड्रेटिक क्या हो रहा है भाई, हमको सीधी सी बात है कि भाई कोई भी चीज अगर हमारे पास किसके फॉर्म में आएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के फॉर्म में अगर आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. We'll take the very first question. First question is what? X plus 1 whole square is equal to 2 times how much? X minus 3. Just see, it is x square plus 2x plus 1. याद आ रहा है? A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. फॉर्मूला याद कर लो. Is equal to 2x minus 6. ये 2x कैंसिल, यानी हमारे पास क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल 0. दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल 0. सो यू कैन से इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन इसका एक अलग सा नाम होता है, पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका अलग सा नाम क्या होता है? ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. ये क्लियर हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया. अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड मतलब क्या, आपकी किताब का फोर्थ क्वेश्चन है, x minus 3 2x plus 1 is equal to x into x minus 5. सिंप्लीफाई करिए, देखिए कितना होगा? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x. सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, 2x को लिया, इसे किया 2x स्क्वायर 2x इंटू 3 माइनस 6x, 1 इंटू x x, 1 इंटू माइनस 3 x x स्क्वायर 5x. सिंप्लीफाई करके देखिएगा तो होगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये दोनों हो गया, माइनस 6x माइनस 5x माइनस 6x माइनस, देखिए माइनस 6x माइनस माइनस प्लस x, तो कितना होगा जी? माइनस 5x, और वो इधर से आएगा तो माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल 0. दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर minus 10x minus 3 is equal to 0. So here is the quadratic equation. But if you want to do the question number what? 6. आप 6 को करके देखिए, ये समझ में आना चाहिए आपको. ये इसका जो 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर. आप देखिए जरा सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर. याद आ रहा है? a माइनस बी होल स्क्वायर. मैं क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जी? a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर.
सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों साइड में है, तो हमारे पास कितना हुआ, ये 3x + 1 इज इक्वल टू माइनस हाउ मच 4x एंड +4, इसको इधर लेके आइए तो हो जाएगा 3x + 4x + 1 - 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज 7x - 3 इज इक्वल 0. इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक, इट्स अ लीनियर इक्वेशन. आपसे ये नहीं बोला है कि लीनियर इक्वेशन है क्या या कौन सा इक्वेशन, पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो आप बोलोगे कैपिटल N एंड O. नो, इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे आपको यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में कहाँ डाउट होता है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये 1 का 8 है. क्या बोल रहा है, x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब. पहली नजर में ये क्वेश्चन लगता है कि क्यूबिक इक्वेशन है. क्यों? आपको पहले यही होता है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करिए. सिंप्लीफाई करिएगा, कुछ आगे बढ़िएगा तब ना पता चलेगा. भाई पैकेट देख करके कैसे समझेंगे कि बर्थडे में आपको क्या गिफ्ट मिला है, हाथी है, घोड़ा है, हवाई जहाज है कि बकरी का बच्चा है. आप जब पैकेट खोलिएगा तभी नहीं पता चलेगा जी. मतलब क्या है, ओपनिंग होनी है, तो इसमें ओपनिंग क्या है, स्क्वायर करिए, क्यूब करिए. देखिए हम कह रहे हैं कि इट इज x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू, हम लोग जरा बात करते हैं, a - b का होल क्यूब कितना होता है, याद आ रहा, a³ - b³ - 3a² b + 3ab², यही ना होता है जी. उसी फॉर्मूला को आप यूज करिए तो कितना होगा, x³ - 2³ - 3x² × 2 + 3x × 2². देखिए x³ कैंसिल. जब x³ कैंसिल हो गया तो जो आपको डाउट हो रहा था कि कहीं ये क्यूबिक क्वेश्चन नहीं हो तो खत्म हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज -4x² - x + 1 इज इक्वल टू, देखिए -2 का होल क्यूब -8 -6x² एंड +12x, सबको इधर लेके आइए, कितना हो जाएगा, 6x² - 4x² -x -12x -1 + 8 इज इक्वल टू 0. 8 इधर चला आया, ये इधर चला आया, ये यहां आ गया, तो ये कितना हो गया, 2x² - 13x एंड +7 इज इक्वल टू 0. बेसिकली ये क्या हो गया, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, यानी किसके है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया. ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है. इसमें सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, सॉल्व नहीं करने की बात कही है, याद रखिएगा. तो आप बी केयरफुल. पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, और कह रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. मान लीजिए कि ये हमारे पास प्लॉट है, तो प्लॉट की जो ब्रेथ है उसको हमने क्या मान लिया, x. आपने क्या माना, लेट द ब्रेथ बी व्हाट, x मीटर. आपने मीटर में दिया हुआ है तो आपने ब्रेथ को x मान लिया. लेंथ क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. तो इसका ट्वाइस कितना होगा जी, 2s हो गया. 1 मोर माने क्या हुआ, +1 हो गया. तो हमने ये कह दिया कि देयरफॉर इसका लेंथ बराबर कितना हो जाएगा, 2x + 1 मीटर हो गया. और आपसे पहले से ही कह रहा है कि एरिया ऑफ द प्लॉट इज व्हाट, 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है भाई, वो तो दिया हुआ है, और इसका लेंथ कितना है, लेंथ 2s + 1 है, ब्रेथ कितना है, x है, तो एरिया कितना होगा, आप लिखोगे देयरफॉर एरिया प्लॉट इज दिस मच, देयरफॉर 2x + 1 into x is equal to how much, 528.
मीन्स 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, यानी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू, दैट इज द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, थर्ड वाला हमने यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि रोहन की जो मदर है, रोहन की मदर जो है उसे 26 ईयर्स ज्यादा है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स मोर देन रोहन सेज। तो मानते हैं कि रोहन की एज अगर x है तो उसकी मदर का एज कितना होगा जी? उसकी मदर का एज होगा x प्लस 26 ईयर्स। अब कहता है कि आफ्टर 3 ईयर्स, तो आज से 3 साल बाद क्या होगा? इसकी एज हो जाएगी x प्लस 3 और मदर की एज कितना हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3। अब उसके बाद जो कंडीशन दिया हुआ, दोनों का सम, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जो आप कहा जाता है उसको कर दीजिए, यू गेट द आंसर। दैट्स व्हाई थर्ड क्वेश्चन आई हैव नॉट टेकन। This question I have already discussed. The product of two consecutive positive integers is 306. यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, हम तो इवन और ऑड को करके आ गए। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉन्सिक्यूटिव क्या हुआ? x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306 हो तो गया, x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। हियर इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, थिंग्स आर वेरी इजी, बट ऑल दीज थिंग्स विल बी यूज्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हेन यू प्रोसीड ऑन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कोई एक ट्रेन है, वो सब मिला के कह रहा है कि वो 480 किलोमीटर वो डिस्टेंस जाती है। मान लीजिए कि ए से बी तक 480 किलो जाती है। कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, किसको? ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर दिया जाए तो इट टेक्स 3 आवर्स मोर। मेरा कहना यह है कि भाई अगर इसकी स्पीड हम मान लेते हैं, ट्रेन की स्पीड मानते हैं कि ये x किलोमीटर पर आवर है, तो अगर हम इन जनरल देखते हैं तो t1 का मान कितना हुआ जी? 480 डिवाइडेड बाई x। ये क्या है? आप पढ़े हो ना, स्पीड इज इक्वल टू, पढ़े हो कि नहीं? ये भूल गया, डिस्टेंस बाई टाइम। देयरफॉर टाइम का मान क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो हमने कहा 480 बाई x। अब दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसकी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर घटा दिया गया है। याद रखिएगा, स्पीड घटा दिया गया मतलब क्या हुआ? स्पीड उसका कितना हो गया? x बाई 8 हो गया। डिस्टेंस तो बढ़ेगी नहीं, डिस्टेंस तो उतनी ही है। तो ये हमने कह दिया 400। मान लीजिए कि ये टाइम कितना हो गया जी? t2। ध्यान से देखिएगा, पहला वाला टाइम हमको लग रहा है 480 बाई एक्स, अगर हम मानते हैं ट्रेन का स्पीड कितना है? x है। दूसरी वाली केस में अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है तो कितना टाइम लगेगा? 480 बाई एक्स माइनस 8। लेकिन कह रहा है कि अगर इस व्यवस्था में उसको 3 घंटा अधिक लग रहा है, याद रखिएगा 3 घंटा अधिक। T1 T2 में कौन बड़ा होगा? कॉमन सेंस यूज करिएगा भाई, जब स्पीड कम हो जाएगी तो वहां टाइम बढ़ जाएगा। वैसे भी जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है, न्यूमरेटर सेम है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है मैथमेटिकली। लेकिन अगर कॉमन सेंस भी यूज करिए तो अगर स्पीड कम होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दिया हुआ है कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स। यही तो कह रहा है ना, 3 घंटा अधिक लग रहा है। मतलब अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें टाइम का तो कितना हो जाएगा? 3 आवर्स हो जाएगा। अब T2 का मान आपको पता है कितना हो जी? 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होता है 480 बाहर, x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। याद रखिएगा, ये 480 मैंने बाहर कर दिया। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 160, 48 हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ, और देखिए एक्स एक्स भी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये 160 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 16 8 28 से 1280, यानी क्या कितना हो गया इक्वेशन?
इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1,2,8,0 इज इक्वल टू 0। ये इसका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज माय बुक, आई थिंक यू मस्ट हैव सीन, अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये इस किताब है, ये थोड़ी सी मोटी तगड़ी किताब है क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चंस ज़्यादा दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, वी विल गो बियॉन्ड एनसीईआरटी या विल हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। So from this book, from exercise 9.1, I am taking some questions. The very first question is, check whether this is a quadratic equation or not. ये quadratic equation है क्या? ये quadratic equation है तो आपको बस वही काम करना है। x into x plus 1, I am talking about first question, is equal to x plus 2 into x minus 2. ध्यान से देखिए, अगर आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये कैंसिल हो गया जी। इसका मतलब कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे, इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेशन के लिए क्या होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर वाला रहना चाहिए था, वही टर्म खत्म हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट दिस। सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड हियर. So some questions are given for practice. You can see the question for practice. Now, इसमें second question है, are the indicated values solution? इसका solution है। solution क्या होगा, अगर x की वैल्यू को उसमें रख देंगे, satisfy करेगा, solution हो गया। This question has been asked in CBSE. x is equal to minus 2 रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल 0। पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, क्या होगा जी, माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 8 इज इक्वल 0। दिस इंप्लाई दैट 4 प्लस 8, देखिए 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 8 इज इक्वल टू, इज इट 16? हम कहते हैं नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपके पास थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहां पर आप क्या रखोगे, जैसे आप कह रहे हो कि यहां है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स एंड प्लस अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू रूट 2 एंड x इज इक्वल टू रूट 3, आर द सॉल्यूशन? आप देखते हैं पुट करके, पुट x इज इक्वल टू रूट 2, व्हाट यू विल हैव, रूट 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू x का मान क्या होगा जी, रूट 2 प्लस रूट 6, ये क्या होगा 2, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3, 6 प्लस रूट 6। ध्यान से देखिएगा, ये भी माइनस ही होगा क्योंकि माइनस अंदर जा रहा है। 2 2 कैंसिल, दिस इज कैंसिल, दिस इज 0। सेटिस्फाई हो गया? अगर सेटिस्फाई हो गया तो हम कह देते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली व्हेन यू राइट रूट 3 स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर मींस 3, याद रखिएगा। और यहां पर क्या होगा जी, रूट 3 होगा तो रूट 3 इंटू 3, फिर 3 3 कैंसिल, रूट 6। तो आप क्या कह दोगे, ये भी इसका सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो उसे सेटिस्फाई कर रहा है। एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, x बाई ए प्लस बी बाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए। सबसे पहले तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इस रिकॉर्डिंग है क्या, आप तो खुदे बोले थे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है a0x⁴n, यानी ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c, ये वही है। आपको सिर्फ देखने की दृष्टि चाहिए, थोड़ा सा एक आध स्टेप आगे बढ़ के देखिए। अगर इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इस एक्स को अगर इधर लेके चले जाइए तो हो गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। यानी ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, मुझे कोई ऐसा तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं और ये क्वेश्चन दिया हो तो चलेगा, क्योंकि हमसे ये नहीं कहा गया कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाइए या पहचानिए। आपसे तो पूछा गया इसका सॉल्यूशन है क्या, तो हम रखते हैं, हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू ए। तो अगर x इज इक्वल टू ए हम रखते हैं तो यहां पर क्या होगा जी, a बाई ए प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो तो गया। तो देयरफॉर आप लिखोगे x इज इक्वल टू a इज द क्या, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा आपसे कह रहा है कि भाई आप बताइए कि x इज इक्वल टू बी, याद रखिए मैं वही कह रहा हूं, आपसे पूछा गया सोल्यूशन है कि नहीं, ये नहीं पूछा गया कंडीशन है कि नहीं है, जो होगा सो देखेंगे, पहले हम उसमें रख के देखते हैं। x is equal to put x is equal to b, if you are going to put, then what you will have, b by a plus b by b, याद रखिए x का मान b रख रहे हैं, is equal to, पहले इसको देखिए तो क्या होगा, b by a plus 1, यानी क्या हुआ, b plus a by b which is equal to how much, राइट, सेटिस्फाई हो गया। तो आपने कह दिया दैट इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए एक डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब हम लोग एनसीईआरटी से बियॉन्ड जा रहे हैं, बिकॉज वी कैन नॉट कंफाइन टू दिस वन, क्योंकि हमने तो बार बार हम लिखते हैं ना लर्न फ्रॉम आथर, तो आथर से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू √7/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, द गिवन इक्वेशन इज, कितना है, गिवन इक्वेशन इज हाउ मच, 3√7x माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0, और आप लिख रहे हो कि x इज इक्वल टू √7/3, याद रखिएगा x इज इक्वल टू √7/3 इज द सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है। सो देयरफॉर क्या लिखोगे, 3√7 इंटू x, x का मतलब क्या है जी, √7/3 माइनस 4 इंटू √7/3 प्लस k इज इक्वल टू 0। देखिए √7/3 है, यहां पर x का मान है हमारे पास, हमने इसको कैंसिल कर दिया तो कितना हुआ, ये 7 माइनस 4/3√7 प्लस k इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 21 माइनस 4√7/3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k को उधर लेके चले जाओ, k की वैल्यू निकाल दो तो जितनी वैल्यू आती है दैट बिकम्स व्हाट, द वैल्यू ऑफ k। तो ये हो गया। इसी तरह से लेकिन सेकेंड क्वेश्चन इसमें बढ़िया है, ये कह रहा है कि अगर x का मान 2/3 है, x का मान -3 है, तो p q की वैल्यू याद रखिएगा, हम मानते हैं द गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 6, द गिवन इक्वेशन इज px स्क्वायर प्लस 7x प्लस q इज इक्वल टू 0। क्या बोला है, x इज इक्वल टू 2/3 इज द सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2/3 इज द सॉल्यूशन। देयरफॉर क्या होगा, p इंटू 2/3 होल स्क्वायर 7 इंटू 2/3 प्लस q इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट 4p/3 प्लस 14/3 प्लस q इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास क्या रिलेशन निकलने जा रहा है, 4p प्लस 3q इज इक्वल टू -14/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 4p इसको उधर लेके गए, 3q हो गया, हमने 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा 4p, 14q, 3q। तो वही मैंने कहा 4p प्लस 3q एंड -14, क्योंकि हमने 3 को हटा दिया था। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा जब कह रहा है कि k का x का मान -3 है, इसी में रखिए, तो आप लिखेंगे p इंटू -3, उसमें कहिए इसमें कहिए, का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस q इज इक्वल 0। मतलब क्या हो गया कि 9p प्लस q इज इक्वल टू 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो आप पास दो लीनियर इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व कर देंगे, then you will be getting the value of p and q. So this way we have finished the first exercise of NCERT, plus we have done some extra questions from what? Student publication. Now that is from my book. Now in the next video we will be going for the solution of quadratic equation. Those things we'll discuss in the next class.